السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور ناظرین آج گفتگو کریں گے کہ شاعری میں ایک دوسرے کی زمین پر طبع آزمائی اور خیالات کے ٹکراؤ کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپنے شاعر جیم سین دھڑکن اور ان کے دو شعراء ساتھی۔ جی السلام علیکم جنید میاں، آپ نے تو آتے ہی ہمارے زخموں پہ نمک پاشی شروع کر دی۔ ارے بھائی، یہ قبضے کے جراثیم تو اب 400 پھیل چکے ہیں، اور یقین مانیے کہ اگر بات شاعر کی زمین تک رہتی تو گوارا تھی۔ شاعر کی شاعری کی زمین پر جب قبضہ ہوتا ہے تو وہ برداشت سے باہر ہے۔ بات تو آپ کی 16 آنے درست، اور اس سرقے چوری کے الزام کی زد سے بڑے بڑے شاعر اور ادیب بھی محفوظ نہیں رہے۔ لیکن بات یہ بھی ایک المیہ ہے کہ بعض اوقات چھوٹے شعراء نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بڑے شاعر یا ادیب پہ سرقے کا الزام عائد کیا۔ یہ بھی ریکارڈ درست۔ آپ کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آیا؟ بھائی، کوئی ایک دفعہ ہمارے اپنے دوستوں نے بھی کئی دفعہ یہ واردات کی۔ اچھا بھائی، ہم تو شاعر لوگ ہیں، فنکار لوگ ہیں، حساس لوگ ہیں، ہم سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ ہم تو موسم اچھا دیکھ کے بہل جانے والے لوگ۔ ارے دھڑکن میاں، آپ بولتے ہیں تو لگتا ہے وقت تھم سا گیا ہے۔ معاف کیجئے، اس کی وجہ ہماری گفتگو نہیں، آپ کی غربت ہے۔ اپنی گھڑی میں نیا سیل ڈلوائیے، وقت نہیں تھمے گا۔ نہیں، شمیم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو چلتے ہوئے دریا رک جاتے ہیں، چڑیاں چہچہانا بند کر دیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں دکانیں بھی یہی بند کرتے ہیں، یہی ہڑتال کرواتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا دھڑکن صاحب، آپ نے موسم کی بات شروع کی تو کچھ عنایت ہی کر دیجئے۔ ابھی چند دن پہلے آسمان پر بادل دیکھ کے آمد ہوئی، وہ پیش کر رہا ہوں۔ ہو جائے گر کھل کے بارش، گر کھل کے بارش، ہو جائے گر کھل کے بارش، کیا کہنے؟ چلیں جو خوب ہنیریاں۔ ارے واہ، اچھا ہے، کہاں بارش کا ہنیریاں۔ واہ، مصرع ثانی ملاحظہ کیجیے، خوبصورت۔ تباہی۔ ہو جائے گر کھل کے بارش، چلیں جو خوب ہنیریاں، چیچو چیچ گنیریاں، دو تیریاں دو میریاں۔ خوبصورت دھڑکن، تیرا متھا چوم لو، کیا خوبصورت تھاٹ ہے۔ اگر یہ گنڈیریاں چاروں میری ہو جاتی تو شعر کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ زخمی میاں، فروٹ کٹھا کر رہے ہو، ابا میاں کا ختم دلانا ہے۔ موسم کا حال تو سنے جی ارشاد۔ ارے بھائی، موسم پہ کیا لکھتے جنید میاں، یہ پہلا شعر ہی ابھی لکھا تو لائٹ چلی گئی، پھر ذہن لائٹ کی طرف مڑ گیا۔ خوبصورت، وارے واہ۔ کیا آمد ہوئی، بن کا ایک دن معین ہے، خوبصورت، اچھا ہے۔ بل کا ایک دن معین ہے، بجلی کیوں رات بھر نہیں آتی؟ بل کا ایک دن معین ہے۔ ویسے میں معافی چاہتا ہوں، ساتھ اگر جرمانہ دے دیں تو لیٹ بھی جمع ہو سکتا ہے۔ آپ کی اس بات پہ آپ کی طرف غور ہوا اور آمد ہوئی۔ واہ 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 واہ، آج تو شکر ہے دیکھا مجھے اس نے۔ دل تو میرا اداس ہے دھڑکن، دل تو میرا اداس ہے دھڑکن، کبا کیوں کائیں کائیں کرتا ہے؟ ارے وارے واہ، دل جیت لیا، کوا کیوں کائیں کائیں کرتا ہے۔ دل تو میرا اداس ہے دھڑکن، کوا کیوں کائیں کائیں کرتا ہے، تنخواہ لیٹ گر ہو گئی میری، پھر کیوں جرمانہ ساتھ پڑتا ہے۔ خوبصورت، اچھا ہے، خوبصورت۔ تباہی۔ دھڑکن صاحب، آپ زمین چوری ہونے کا رونا رو رہے ہیں اور خود دوسرے شاعروں کی زمین استعمال کر رہے ہیں۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، جو جرم انسان خود کرے اگر ساتھ اس کا واویلا بھی کرتا رہے
तो उसकी तरफ से तवज्जो हट जाती है। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? सुहाने रूह बन जाती है शायर के लिए जमीन की चोरी, शेर की चोरी। बजा फरमा रहे हैं आप। भाई अभी पिछले दिनों मेरे ससुराल के गांव से चौधरी का फोन आया कि भाई आके बकरा ले जाओ। वाह, बाखुदा सदके का नहीं कहा था। हाँ, कुछ लोग मुंह से नहीं कहते, दिल में कह लेते हैं। नहीं, बस उन्होंने इतना जरूर कहा था कि भाई मेरी अम्मा बीमार है, बकरे को हाथ लगवा दिया और आके ले जाओ। होगा सदके का ही, उन्होंने कहना मुनासिब नहीं समझा होगा। देखो, उन्होंने अगर पर्दा डाला है तो बात को आप तो अफशाना करें। वाह वाह। तो हम सदके का बकरा लेके, मेरा मतलब है कि चौधरी साहब का बकरा लेके जब बस पे रवाना हुए तो मेरे पाँव के नीचे से बस निकल गई। ओहो, बहुत जोर से गिरे हुए आप तो। भाई शमीम मियां, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी नज़म चोरी होने पे हमारे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। भाई परांदे बेचने वाला हमारी नज़म पढ़कर परांदे बेच रहा था। परांदे पे भी नज्म लिखी? भाई परांदे पे एक नहीं दो लिखी है, और दोनों ही आपकी भावच के लिए। भाई एक तो वो है ना कि गुट चुम्मे गिटिया नू, वो तो आपने बारहा सुनी होगी। वाह, इतना मशहूर कलाम अपने नाम लगा रहे हैं। ये शायरी की चोरी पे आपका वावेला बनता है। आप जी शायर मौसूफ तो शायद आप तक ना पहुंच पाए, मगर मुझे यकीन है कि हुमैरा अरशद लाजमन आपकी किसी महफिल में चितरौल करेंगे। भाई चले उसे छोड़ दीजिए, हमारे वाली सुन लीजिए जो कम बखत परांदे बेचने वाला चोरी करके सुना रहा था। वाह। अर्ज क्या है? वेखो पीले लाल परांदे, वाह। पिंडो शहर दा फेरा पाउंदे, बस च नान ते टिक्की खांदे, थक जांदे ओ पैसे कमांदे। शॉपिंग सेंटर कदे न जाना, सस्ते ले लो आंदे जांदे, पिंडो शहर दा फेरा पाउंदे, वेखो पीले लाल परांदे। किराया ते मैं पूरा दिता, क्यों पे हो मैनू थल्ले लांदे। वाह वेखो पीले लाल परांदे। वाह। शमीम मियां, आप ही करीब बैठे हैं, दाद दे दीजिए। उल्टे हाथ की कि सीधे हाथ की? बनती तो दो तरफा है। लड़कन साहब, ये आप दोनों क्या साथ लिए फिरते हैं यार? बस जुनैद साहब, ये जख्मी मियां तो खास तौर पे हर महफिल में हमें कुछ यूं जलील करवाते हैं कि लब कुशाई पे जी चाहता है। अभी आमद हुई है इन्हीं के किरदार पे। मैं रज के इसे फेंटना चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। क्या बात, क्या बात। कभी तो चलो कुछ ये अपना सुनाए, जमानों से ये मोजजा चाहता हूं। इन्हें सादा पानी पिला दें बहुत है, मैं बिस्कुट और एक मग्गा चाह चाहता हूं। और हासिले नज्म शेर है, जख्मी मियां की खिदमत में पेश कर रहा हूं। जो जख्मी था अब चल बसा है बिलाखिर, जो जख्मी था अब चल बसा है बिलाखिर, ये पैगाम सुनना जरा चाहता। बहुत महंगा है 3 रुपए वाला पैकेज, मैं पैकेज कोई सस्ता सा चाहता हूं। हाय हाय। कहा कल मुहज्जब से डाकू ने मुझको, हुजूर आपको लूटना चाहता। हुजूर आपको लूटना चाहता। अच्छा है। अरे वाह, आप क्या करतूत सुना रहे हैं? आप कह रहे हैं अच्छा है। नहीं जी, वो ये डाकू मौसूफ खुद नहीं कहते अच्छा है, ये मुंह से निकल जाता है। पागल हो चुके हैं। जी हाँ, और इस पागलपन की वजह भी सुनाई देते हैं। एक दफा मुशायरे में बैठे हुए थे, आदत यही है अच्छा है। अचानक इसी दरमियान घर से फोन आ गया बेटे का। अच्छा। उसने बताया कि अम्मा सीढ़ियां से गिर गई हैं। अच्छा। आगे से आवाज लगा दी अच्छा है। आवाज इतनी ऊंची लगाई कि फोन के जरिए भावज के कानों तक पहुंच गई। मेरा ख्याल है 10 मिनट पूरे नहीं हुए, 9वां मिनट था कि भाभी मुशायरे में पहुंच गई। अच्छा, खुद कलाम सुनाने के लिए नहीं, इनके साथ कलाम करने के लिए पहुंची। उल्टा लटा लिया मुशायरे के दरमियान। अच्छा। मौसूफ का पेट देख लीजिए, दरमियान से ऊंचे और दाएं बाएं से नीचे।
बावज हमारी पांव पे डंडा मारे तो ऐसे हो जाए, सर पे डंडा मारे तो ऐसे हो जाए। वहां मौजूद हाजरीन के बच्चे ऊपर चढ़ के सीसा खेलना शुरू हो गए। इस अच्छा है की वजह से काफी दफा बेइज्जत हो चुके हैं। एक दफा गली में से जा रहे थे जख्मी मियां, बच्चे खेल रहे थे, कहीं से एक पत्थर आके इनकी पुरपड़ी पे लगाए। हाय, तो इन्होंने हस्बे आदत कहा है अच्छा है। उसके बाद आधा घंटा संसार हुए मौसूफ। हाय, बनता तो यहां भी है अच्छा है। नाजरीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद मियां, ये तो आपकी मोहब्बत है और हम भी अदब की मोहब्बत के मारे हुए लोग हैं। यहां आ जाते हैं एक तो आपका दिल बहलाने के लिए और दूसरा अपने गुबार निकालने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। दुख होता है भाई, यही लाहौर शहर है, यही पाकिस्तान है जहां पे शुआरा और अदीब ऐसे ऐसे नामवर हुए हैं, इतने इतने बड़े लोग हुए हैं कि पूरे बर्रे शरीर में उनका नाम हुआ है। सही, बिल्कुल। मसला ये है कि भाई कहां गया वो अदब? क्या उनके आगे शागिर्द ऐसे नहीं जो उनका नाम रोशन रखें? हैं, बिल्कुल हैं। मुझे तो यूं लगता है कि बाकायदा मंसूबाबंदी से इस खित्ते से अदब को खत्म किया गया है। भाई लाहौर का तो हुजूरी बाग ही नहीं था मान। आप जरा याद कीजिए माजी को, आप भी माशाल्लाह बुजुर्ग आदमी हैं। आप दोबारा नहीं आना चाहते हस्बे हाल में? नहीं नहीं, आप हैं तो बुजुर्ग, लेकिन आपकी पैकिंग बहुत अच्छी हुई है। नहीं, मेरा मतलब है कि आप भी गहरी बसीरत के मालिक हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे कैसा कैसा शायर और कैसा कैसा अदीब अल्लाह ताला ने अनायत किया है। धड़कन साहब, कहाँ हजूरी बाग में मुशायरा पढ़ने वाले शायर और कहाँ जी हजूरी करने वाले शायर। कुछ देखिए, कुछ इनको मिक्स ना कीजिए। जो अदब के साथ मोहब्बत करने वाले हैं वो तो आज भी बेचारे सिर्फ दाद वसूल करके घरों को चले जाते हैं। अब धड़कन साहब दूर क्यों जाते हैं? हमारे शो में आप तीनों तशरीफ लाते हैं, मुझे आप तीनों में से कोई एक भी जेन्युइन शायर नहीं लगता। ऐसा तो ना कहिए, हम रो देंगे। आप फिर देख ले गौर से, फिर देख ले, कोई तो जन्म लगेगा आपको। फिर एक दफा देख ले। अब आप अकेले जख्मी मियां की चोरी का इल्जाम हम सब पे ना थोप दीजिए। मुझे आप दोनों से तो नहीं, अलबत्ता मुझे आप थोड़े से आपने तो कभी चोरी नहीं की कलाम की, शेर की? ना ना ना, तौबा 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 तौबा। शेर कभी नहीं चोरी किया। अच्छा, हमसायों के दरख्त से अमरूद चोरी किए, मोहल्ले के बच्चों ने। अच्छा। ये शमीम मियां ऐसे नहीं। हाँ, सारी जिंदगी जूते उठाए उस्तादों के। अच्छा अच्छा। बड़े बादब हैं। चंद मर्तबा पैसे इधर उधर किए। क्या कह रहे? भाई वालिद साहब के, वालिद साहब ने कहा भी बटुआ उधर से उठा के इधर ले आओ। अच्छा। बड़े आला पाए के शायर हैं शमीम मियां। ऐसे तो नहीं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की बातें सुनी। जी 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 हाँ, माशाल्लाह गुफ्तगू होती रहती है कि कभी ना कभी तो जरूर हुकूमत नवाजेगी इनको। ये तो बस एक ये जो जख्मी मियां हैं इनकी वजह से आप हमें भी मशकूक निगाहों से देखते हैं। यानी पूरे जमाने में एक हम ही चोर आपको नजर आए हैं? नहीं, नजर नहीं आए, आप हैं। देखिए, बात ये है जुनैद मियां कि हम तो इनको अक्सर औकात ये समझाते रहते हैं कि भाई कोशिश करो, अल्लाह ताला खुद आपको भी अता कर देगा। वैसे भी धड़कन साहब, मेरा ख्याल है नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। भाई नकल भी क्यों करनी है जुनैद मियां? जरा थोड़ा सा हालाते हाजरा पे निगाह दौड़ाते हुए जहन पे दबाव डालें तो अल्लाह ताला अता कर देता है। अभी आपके चैनल की तरफ आते हुए जब वैगन में कुबड़े होके खड़े थे, अच्छा, हर निगाह जो है वो कंडक्टर के खौफनाक चेहरे पे थी, तो वैगन से उतरते ही क्या आमद हुई पेश कर रहा हूं। दिल ते गया है ठुक सजना, दिल ते गया है ठुक सजना, वेख के तेरी लुक सजना, तेरे अगे सिर की चुकीए कमर च पै गई चुक सजना। अच्छा है।
हंस या खिंच के मुक्का मार, जो मुकनाई मुक सजना। वाह जी वाह। भाई हम यहाँ कोई फालसे बेचने नहीं आए, तो हमारी भी तो सुन लीजिए। इरशाद जी, इरशाद। चंद माइया तेरी राह पे तकनिया, वाह वाह चंद माइया तेरी राह पे तकनिया, तेरी राह पई तकनिया, जेड़ी सवेरे हलीम पकाई सी और राती पई चखनिया। वाह वाह वाह। मत गिरा लगाओ हमारे मिसरे पे। जी इरशाद। चंद माइया तेरी राह पे तकनिया, बत्ती बाल के बनेरे उते रखनिया। जी अब क्या कहते हैं? उम्र कैद। बनती है और सिर्फ मौसूफ की वजह से साथ हम भी खार हो जाते हैं। धड़कन मियां, अगर गिरा ना गुजरे तो अर्ज करूं, जी फरमाइए। आप भी फन्ने शायरी में कमजोर है, सिर्फ फन्ने अदाकारी से अपनी कमजोरी को दूर करते हैं। कुछ तो करता हूं ना। वाह जुनैद मियां, भाई पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। ये दोनों मौसूफ घर से निकलते हुए कह रहे थे कि भाई सारे शहर की सड़कों की हालत देखो, क्यों चल पड़े हो हमें लेके। हमने कहा भाई इन टूटी फूटी कीचड़ से भरी हुई सड़कों से ही इंशाल्लाह कोई ना कोई आमद हो जाएगी, और हो गई। जरा समात फरमाइए। इरशाद। हुई थी पिछले हफ्ते 10 मिनट जो बूंदा बांदी सी, हुई थी पिछले हफ्ते 10 मिनट जो बूंदा बांदी सी, खड़े कीचड़ की सूरत बाकियात उसकी है यूं बाकी, मेरी सड़कों का पानी टस से मस होता नहीं धड़कन, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तबाही। लेकिन जुनैद साहब आखिरी मिसरा चोरी करके ही पूरा हुआ है। लो बताओ। कह तो वो ठीक ही रहा है। तो फिर सीधा कह दीजिए कि आज चाय नहीं पिलानी। इन्होंने चोरी नहीं किया, आखिरी मिसरा मुस्तार लिया है। बहुत अच्छी। हम करें तो चोरी, वो करे तो मुस्तार। बिल्कुल नहीं लाऊंगा तुम्हें अगले इतवार। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, मैं अपने माशरे से तेजी से गुम होती हुई रवायत का जिक्र करना चाहता हूँ, जिससे हमारे के थल्ले सोटी लगा के चिड़ियां पकड़ना। कम वेश वैसी। तो कुछ अर्सा पहले याद है यार, हमारा मतलब 15-20 साल पहले ये होता था कि जब भी गली में किसी जगह पे सड़क के किनारे किसी मैदान में हजूम लगा होता था तो फौरन मुंह से ये निकलता था कि कोई मदारी का तमाशा हो रहा है, या जब बंदे इकट्ठे हो जाते थे चलो भाग जाओ, यहाँ कोई मदारी का तमाशा हो रहा है। तो लगा भी होता था। वो कहाँ चला गया मदारी का तमाशा। इतनी एंटरटेनमेंट के जराए वसी हो गए कि आज की नौजवान नस्ल जो है वो बंदर, बकरी और वो रीछ का तमाशा उनको पता ही नहीं है। और मेरा ख्याल उनके पास शायद टीवी पे भी नहीं उन्होंने देखा होगा। आज की शहरों में बड़ी होने वाली जो नई नस्ल है उसको नहीं पता होगा। मैं एक बात बताऊं, छोटे जो शहर या पिंड कह लो, कस्बे वगैरह है ना, वहां अभी भी ये लोग पाए जाते हैं, मगर वाकई जो बड़े शहर है आबादियों वाले, वहां पे ये गायब हो गए हुए हैं। बल्कि अब अल्लाह माफ करे ये लोग फकीर की शक्ल इख्तियार। ये अच्छा, उनको भी ये गिला है। लाहौर शहर में मुश्किल से हमें इस मौजू को डिस्कस करने के लिए एक मदारी मिला है। ये न्यू फूड स्ट्रीट में नूर शाह नामी, वो 4 नस्लों से ये काम करता है और उसने बड़ा इस बात पे एहतजाज किया है कि हमें फकीर बना दिया। अच्छा। हाँ, उससे जब बात हुई तो उसने कहा कि जी ये बाकायदा मदारी जो है, मदारी का मतलब ये है कि जानवरों का तमाशा दिखाने वाले, बंदर, रीछ, बकरी और कुत्ता, आमतौर पे ये 3-4 जानवर हैं जो पूरी दुनिया में जानवरों का तमाशा दिखाने वालों के हवाले से ये 3-4 जानवरों का तमाशा मशहूर है। खास तौर पे जो रीछ का तमाशा है वो पाकिस्तान के अलावा यूरोपीय ममालिक में बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। जी जी, खास तौर पे ये जो है ना जी, सब कॉन्टिनेंट जिसको कह लो, वहां पे ये बांदर शांदर बंदर, बकरी और कुत्ता, ये सब कॉन्टिनेंट का एक खास कल्चर है तमाशा दिखाने के हवाले से। और उस नूर शाह का कहना यह है, उसका कहना है कि ये बाकायदा हमारा एक कबीला है मदारियों का। वो ये कहता है कि ये फकीर कबीले की एक गोत है, एक सब कास्ट है फकीर कबीले की। और उसका कहना यह है कि ये राजस्थान, हिंदुस्तान से ये हमारे आबाओ अजदाद वहां से चले जो फिर बर्रे सगीर में पूरे फैल गए। शहनशाह दे दर्द
मदारी वड्डी या मेला, मेला, पेड़ वड्डी या लेला, लेला, अंब वड्डा या केला, केला, जुनेद वड्डा या सेला। सेला सेला, और वो भी 22 साल। यार मदारी देखो तुम शनाख्ती कार्ड बनाने लग गए। जमूरा बाबा, ए गुरु वड्डा के चेला, चेला, तेरा कख ना रवे, रोटी मदारी दी भी खा जाना ते बांदर दी भी। ओए चेला गुरु नालो वड्डा किस तरह हो गया? ऐसरा। अब भाई इधर आके अपनी लड़ाई ना शुरू कर दो, उधर तशरीफ रखो, बैठो। जी वो खैर जनाब जी। यार ऊपर बैठे, बैठो। ऊपर बैठे, कुर्सी पे बैठे। जनाब वो लोग की नहीं आप कुर्सी पे बैठे यार, ऊपर कुर्सी जी? पे बैठे। हाँ वाह जी वाह, लो जी उस्ताद जी, उत्ते सानू बिठा छड़िया बाऊ होरां ने, बड़ी मेहरबानी है इन्हां दी। जमूरा वाह वाह, इस भाईये नाल लड़ेगा? मैं पागल हां। सियाना जमूर है। ए जमूरे, वाह वाह, इस भाईये दी जेब च की है? मुंह तो लगदा कीमे वाला ना नहीं होएगा। ए दस भाईया वड्डा होके की बनेगा? हैं इन्हें हाली होर वड्डा होना है। इहदे मुंह जिद्दा ते मेरा निक्का भरा है। बहुत अच्छे, ये तुमने लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है या मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलवाए? अच्छा मैं बता ये रहा था कि ये बाकायदा राजस्थान से निकल के इनके आबाओ अजदाद फिर पूरे बरे सगीर में फैल गए, और ये खाना बदोशों की तरह किसी एक जगह टिक के काम नहीं करते। जी। और इनका जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट सबसे जानवर है वो आज तक बंदर ही है। और आमतौर पे जो पाकिस्तान के मदारी हैं वो बंदर हासिल करने के लिए इस्लामाबाद, मारगला या एबटाबाद का रुख करते हैं। हाँ जी, उनको ट्रेंड करने के लिए ये रावी दरिया के परले पासे शदरे के नुक्कर पे बड़े बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली आमतौर पे वो बंदर 3, 4, 5 हजार का मिलता है, लेकिन सदाया हुआ बंदर जो है वो 15 से 20 हजार रुपए का मिलता है। शाबाश, तो तुमने ये कितने का लिया था? ये बच्चा जमूरा है, इसका इस तमाशे में या मदारी में मरकजी किरदार होता है। आमतौर पे मुहावरतन भी कहा जाता है कि ये बच्चा जमूरा का रोल प्ले कर रहा है। यस मैन, जो उस्ताद कहेगा, जो ये कहेगा वो उसकी हाँ में हाँ मिला। अरे यार मदारी की हाँ में मिला के बेचारे की ये हालत हो गई हुई है। थोड़ा सा अपनी अकल से काम लेता तो उससे तो बेहतर ही होता। अच्छा मैं बता ये रहा हूं कि इसमें जो बकरी होती है, आमतौर पे हम तो जानते हैं लेकिन नई नस्ल नहीं जानती कि बकरी का करतब ये होता है कि वो एक पाए के ऊपर अपने चारों पाए इकट्ठी कर लेती है। हाँ, और वो इकट्ठे कर लेती है, और ये खास नस्ल की बकरी होती है, इसको कहते हैं सुमरी नस्ल। ये बलोचिस्तान से लेके आते हैं और इसका रेट 15 से 20 हजार रुपए तक का होता है। 15-20 हजार की बकरी, 15-20 हजार का बंदर को 15-20 हजार का कुत्ता भी होगा। वो इतने पैसों को कपड़े की दुकान डालो, पखे के नीचे बैठा करो आराम से। ये बगैर सदाई हुई आम बकरी है सुमरी, वो 15-20 हजार की है। जब वो उसको सदा लिया जाता है तो उसकी कीमत 30-35 हजार तक चली जाती है। भाई जी आप इधर आ जाए, मैं उधर बैठ जाता हूँ। इतने बड़ी मुश्किल ना बैठे हैं उठे जाके तो फिर प्रोड्यूसर से कहो फटाफट चाय मंगाइए, साथ केक जरूर मंगाना, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है ये तो। एक बड़ी अजीब बात बताऊं कि मतलब जो मानने में नहीं आती वो ये है कि बंदर सधाने में 4-5 महीने लग जाते हैं, जबकि बकरी सिर्फ 2 महीने में ये करतब सीख जाती है। अच्छा, 2 महीने में? अरे बकरी जो है ना जी, जो बकरा होता है नस्ल छतरानी बकरा, ये बड़ा सियाना जानवर होता है। अच्छा, इनकी कास्ट में सबसे महंगा अदाकार पता है कौन होता है? कौन? और तुम्हारा दोस्त चाचा रीच। आमतौर पे ये ब्लैक बियर होता है या ब्राउन बियर होता है, ब्राउन बियर ज्यादा होता है। अच्छा। और उसकी कीमत सधाने के बाद 1.25 लाख से 1.5 लाख तक चली जाती है। 1.25 लाख से 1.5 लाख। वाह वाह वाह। जमूरे वाह वाह, ए बाऊ नु सलाम करते 1000 दा नोट फाड़। लो भाई जी, इनके साथ गुफ्तगू करके इनको चाय चाय पिला देना। मेरा तो डॉक्टर सफदर महमूद साहब के साथ है। बताओ यार डॉक्टर सही, इधर बैठो। अल्लाह वाले तेरे के 1000 का नोट की है, बात 1000 का अच्छी। नोट दे देगा गरीबां नु, तेन दुआवां देणगे। ये जितनी प्रॉपर्टी जुनैद ने आपकी सुनाई है, बल्कि जाते हुए मुझे 1000 दे के जाना। अरे तुम्हारा 1.25 लाख का है, मेरा स्कूटर 8000 का है। अब भाई रिच 1.25 लाख दा ते एवें नहीं रोवे स्कूटर नु, तेरा स्कूटर इंज कर सकदा है? और जाहिल आदमी रिच ऐसे नहीं करता, ऐसे करता है। ओए बल्ले बल्ले बाऊजी बटाना जे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
अच्छा भाईजान हस्बैंड डाक की तरफ आते हैं, पहला एक व्हाट्सएप मैसेज है, सुनो जरा। सुनाइए जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर बात कर रहा हूँ हासिलपुर से। हस्बियाल टीम से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग लोड शेडिंग पे बात करना बिल्कुल भूल गए। अभी भी बहुत से छोटे शहर हैं जहाँ पे लोड शेडिंग का इतना मसला है। आपकी मेहरबानी है कि आप इस पे भी एक आज प्रोग्राम करें जो हमारे मसाइल को हल किया जाए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। नहीं भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, ये गौर करो ना, गुस्से से उनका मुंह बकायदा 500 वाट का हुआ है। परेशान है लोग यार, क्या करें। उनका गुस्सा बजा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम ये अर्ज कर दें कि जितना लोड शेडिंग का जिक्र हमने हस्बे हाल में किया है, हमारा तो गला खुश्क हो गया, और छोटे शहरों का खास तौर पे। तुम्हें याद है कि हमने अदादो शुमार के साथ ये बात साबित की थी कि छोटे शहरों में लोड शेडिंग में कोई कमी वाकई नहीं हुई, सिर्फ लोग यूपीएस और जनरेटर के इस्तेमाल के आदी हो गए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मुझे याद है कि छोटे शहरों का हमने बड़ा जिक्र किया था। ये पाजन है तो मुझे गुस्से में कह रहा था कि यार चंद दिन में छोटे शहरों में कुल्फियां ना लगा लो ताकि रिसर्च भी हो जाए। अच्छा जी, खत क्या है? हाँ जी, खत है लाहौर कैंट से। अनीस अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब और अजीजी साहब, आपको एक पहेली भेज रहा हूँ जिसका जवाब मुझे भी नहीं आता है। आप दोनों में से जो पूछ लेगा उसको 1000 रुपया इनाम दूंगा, लेकिन लाहौर में ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल होने के बाद। अगला क्या खाता है? और इसने सीधा नकार ही कर दिया है। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, बननी तो है ना यार। इंशाल्लाह बनेगी, इंशाल्लाह बनेगी। अभी तो केस चल रहे हैं यार, अब बंदा 1000 रुपया पीछे इतने देर तक इंतजार करे। ये अलग बात है कि जब बनेगी उस वक्त 1000 रुपए आज के 10 रुपए के बराबर रह जाएगा। यही ना हो। अच्छा चले पहेली तो सुन लें। पहेली है, वो क्या है जो आपका है मगर आपकी बजाय उसे दूसरे लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? मेरा मोबाइल। नहीं, मेरा ख्याल है इसका सही जवाब आप बताएं पहले। नहीं मेरा पता, ख्याल है नहीं इसका पता, नहीं जवाब पता, होगा नहीं पता। नाम। ओए जबरदस्त। बिल्कुल वाह सही। वाह वाह, ये तेरे सदके जावा ये। भाई जी 1000 तो रुपया है, पहले ही देने ऑरेंज ट्रेन ये रोरडी कड़ी है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं, ये काफी सारे लोग पहेलियां और इस तरह के चुटकुले और अपना सवालात भेजते हैं जिनमें मेरा ख्याल है को 70% क्लियर लिखे ही नहीं होते। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने व्यूअर्स से कि यार ये पहेली वगैरह या कोई इस तरह की चीज भेजे तो उसको यार ध्यान से सही तौर पे लिख के भेजा करें ताकि वो आपकी सुनाई जा सके या पूछी जा सके। ठीक है। अच्छा ये व्हाट्सएप मैसेज सुनो यार। अस्सलाम वालेकुम हस्बियाल टीम, मेरा सवाल अदीजी सर से है कि आप हमेशा मजाकिया ही शायरी क्यों करते हैं? क्या आपको संजीदा शायरी की समझ नहीं आती? ये बताएं। बेटे पहली बात तो ये है कि संजीदा शायरी भी जरूर हमें सुनानी चाहिए, मगर ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं ये कोई इधर ईद कार्ड लगा के नहीं बैठे हुए। ये बेटी सुनाते हैं संजीदा शायरी। और रह गई बात अय्यी अंकल की, तो अय्यी भी संजीदा शायरी करता है। अय्यी का तो अपने शेर हैं बड़े बड़े संजीदा, ये इससे ज्यादा संजीदा शेर और मैं क्या कहूँ। ना जाने गुजरेगी क्या दिल पे, कैसी वो घड़ी होगी, सुना है दरमिया हूरों के बेगम भी खड़ी होगी। यार खुदा के लिए ना हंसा करो, संजीदा भी रहने दिया करो। बेटे ये हंसते हैं तो मेरा शेर मैया हो जाता है, वरना मैं संजीदगी से शेर कहता हूँ। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजन है तो आज मेरे साथ अजीब हुई है। एक मौजूद से आदमी, उन्होंने मेरी तरफ देखा है तो मैंने समझा शायद पहचान रहे हैं कि ये वही दानिश्वर है जो दुनिया टीवी पे बैठता है। तो मुझे कहने लगे ओए इधर आओ ना जी साहब। पहले ओए कहा है फिर साहब भी कहा है। अच्छा सच्ची जो बात है, मैंने किसी की बुराई नहीं करनी। मैं डर गया, मैंने कहा यार ओए और साहब जो मिक्स हुआ है बात को ठीक नहीं लग रही। तेवर भी उनके थोड़े से बदले हुए थे। मैं पास गया हूं, मैंने कहा जी सर फरमाए हजूर। कहते हैं बात करते हो तो पूरी किया करो। मैंने कहा जी क्या हुआ है जनाब? कहते हैं कुछ अर्सा पहले तुमने ये कहा था जी कि टेलीफोन कान के साथ लगा के सड़क पार कर रहे होते हैं, टेलीफोन कान के साथ लगा के तो जा रहे होते हैं, सड़क के ऊपर फोन सुन रहे होते हैं। तो कहते हैं मेरी बात सुना, मुंह तुम्हारा बकायदा 2 किलो दही रिड़कने वाला है। जुगत कर दी। मैंने वो भी नहीं गुस्सा किया, मैंने कहा चलो एक चीज है तो मैं क्यों गुस्सा करूं।
हालांकि उन्होंने 2 किलो कम बताया वैसे। बात सुननी है या फिर मैं रोक दूं? नहीं 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 यार प्लीज तुम यार दही तोलना शुरू हो जाते हो, मेरी गुफ्तगू तोलो यार। कहने लगे कि ये जो मोबाइल फोन है इसका मतलब ही ये होता है मोबाइल का कि इसको साथ लेके बंदा फिरे। तो अगर रास्ते में फोन आ गया तो घर जाके सुन के फिर वापस आए। तो मैंने कहा जनाब मसला ये है कि मैंने सिर्फ इतनी अर्ज की थी कि फोन सुनते हुए सड़क क्रॉस ना करें। अगर टेलीफोन की बेल हो गई है तो चलते हुए भी चलो रुक जाए। अगर सीधा भी फुटपाथ पे जा रहे हैं तो फोन सुनते हुए बंदा किसी माई में बज जाए, बाद जो माई को बादुआ वाला हो। तो अगर फोन आ गया तो साइड पे हो गया, सुन के तो फिर चल पड़े जेब। मोबाइल का ये मकसद तो नहीं कि आप ड्राइव कर रहे हैं और सिर्फ फोन सुन ही नहीं रहे, आप मैसेजिंग भी कर रहे हैं। अब देखो ना जरा ऐसे ऐसे बेवकूफ भी देखे हैं मैंने। तो मसला ये है कि मैंने कहा है और ये असल में मैं कहना चाहता था। तो कहते हैं यही तो मैं कह रहा हूं कि ये पूरी बात करनी थी कि एक साइड पे हो गए फोन सुन के फिर टुर पड़े, आगे से ना इस तरह की बात करना। मैंने कहा अच्छा मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं कोई नून लीग का कोई लीडर शीडर ना हो। जब पूछा तो पता चला कि भाव मुनीर मरहूम नहीं था जो बड़ा मशहूर पंड थे, जी जी बड़े कमाल आर्टिस्ट हुए हैं, उनका बड़ा बेटा था। उन्होंने फिर तुम्हें ठीक जुगते लगाई हैं। सही 2 किलो दही खिलाया आपको। इस तरह की अगर जंग शुरू हो जाए तो बीच में फौरन खबर पढ़ देते हैं। अच्छा जी सुने, कहा जाता है शौक का कोई मोल नहीं है। नई दिल्ली का गौतम नामी शख्स अब तक 25,000 माचिस की डिब्बियां जमा कर चुका है। उसका कहना है कि ये शौक उसे बचपन से ही था। शाबाश गौतम जी, माशे इकट्ठी कर रहे हैं जनाब। अब तो घरों में भी चूल्हा जलाने के लिए वो पिस्तौल वाला लेटर आ गया हुआ है। जनाबे आली मौसम बड़ा अजीब सा हो गया हुआ है, माशे बेच छोड़े। ये किस काम में पड़े हुए हैं? 2-2 रुपये भी रोज आप गले में अगर डालते तो आज 50,000 रुपया होना था। ये तो मेरी माशे और वो भी ऊपर मसाला लगा हुआ, बरूद ये ना घर पड़ा हुआ। इसको निकाल के बाहर सुटे जनाब। अल्लाह ना करे किसी दिन हमें मौसम की शिद्दत की वजह से अगर आग लग गई तो फिर जो लोगों को बताते फिर इन्हें मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सड़ गया। 25,000 माचिस से एक तीली की मोहताज। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ हॉबीज है, तुम्हें क्या तकलीफ है? यार हॉबी भी कोई चज की हो ना। इस तरह तो कई बंदों ने हॉबी बनाई हुई है, मैं रोज अपनी बेगम से बड़ी बेइज्जती कराता हूं। ये क्या हॉबी है भाई? तुम बताओ। खबर पढ़ दो जल्दी से। सुने, न्यूयॉर्क में खुद को चोरों से बचाने वाला मोबाइल फोन आने ही वाला है। हाँ, इतना सियाना फोन। हाँ जी, यानी फोन चोरों से खुद को बचा लिया करेगा। बिल्कुल। बल्ले बल्ले बल्ले, इसका मतलब है चोर अगर आएगा तो फोन जेब में से निकल के फटाफट गड्डी के पीछे लुक जाएगा। और अगर उधर को चोर गया तो वो दौड़ लगा देगा आगे। और अगर फिर भी बेचारा मोबाइल पकड़ा गया तो उसने चोर के हाथ पे इतनी जोर से दंदी वंडनी है ना कि उधर मिस कॉल का निशान पड़ जाए। ये तो फिर बड़ा खतरनाक है ये मोबाइल। ये इतना समझदार मोबाइल तो फिर कार जाके तो बंदे की शिकायतें भी लगा दिया करेगा। हाँ, सीधा शुरू हो जाएगा कि बाजी जेड़े भैन ने ना मेरे ये बड़ियां बड़ियां अजीब काला कर दे। इधरों भैन बोलते ने तो उधरों पता नहीं कौन टुट मरनी बोलती। बाजी मैनू ना कोई अलामा देना, भैन मेरे मोढे ते बंदूक रख के चलान दे। और उसने इतनी बात करनी है तो बाजी ने अलमारी में से बंदूक निकाल लेना। अरे मैंने पक्का पता है कि ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं होंगी, ਤੁਹਾਡੀ आवाज की तो तपश ही बड़ी है। हाँ जी, 2-3 वारी ਤੁਹਾਡੀ आवाज नाल मेरी बैटरी भी सड़ी है, तुझे पता ही। वैसे जो इतना सियाना मोबाइल है, ये अगर किसी दिन थकिया हुआ होगा तो ये तो खुद कहीं है सराने थले लुक जाया करेगा। अजीजी साहब, खबर पता नहीं कहीं की होती है और आप उसे कहीं और ही ले जाते हैं। यही दानिशवरी है। और दानिशवर तुम्हारा क्या ख्याल है? उसको इधर कनुए निकले होते हैं। अच्छा खबर सुने अगली। जापानी कंपनी ने ऐसा अनोखा रिपोर्ट तैयार कर लिया है जो ना सिर्फ मजाक से आशना है बल्कि लतीफे भी सुनाएगा। जी हाँ, सुबह के वक्त ये अलार्म ट्यून की बजाय लतीफा सुनाकर उठाया करेगा। इनका बेड़ा तर्ज है जापानियों का। अल्लाह ना करे ये इस मुल्क में आ गया तो हम तीनों की तो छुट्टी हो जाएगी। ऊपर से भाजना है तो पहले ही हम पे तपा हुआ है, इसलिए तो चैनल वालों को कह देना जी कि जरूर तजर्बा करे।
ہم تینوں کی جگہ پہ ادھر 3 مشینیں لگا لینی ہیں. وہ تو لطیفے بھی سناتا ہے اور میاں بھی پیدا کرتا ہے. عزیزی یہ جاپانی رپورٹ ہے, یہاں جاپانی زبان کی کسی کو سمجھ نہیں آنی. اب بھائی جی نواں طریقہ نکل آیا, اوپر ترجمہ چلا دیتے ہیں. تم دونوں تو چلے جاؤ گے تھیٹر کرنے کے لیے, میں اب نہر پہ پھر کے اینڈ کے بیچا کروں گا. باقی باتیں تو سمجھ آتی ہیں, لیکن یہ صبح لطیفہ سنا کے اٹھانے والی بات سمجھ سے باہر ہے. یہ کیسے؟ یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے, شاید کچھ جھوٹی ہو, اللہ کرے. ہمیں تو جلی سڑی بات سن کے اٹھنے کی عادت ہے. یہ میرا خیال ہے انہوں نے بیوی کی ٹکر پہ بنایا ہے کہ بیوی سویرے بیٹی کر کے اٹھاتی ہے, انہوں نے سویرے اٹھانے کے لیے لطیفے بھرے ہیں اس میں تاکہ خامد زیادہ سے زیادہ یہ خریدیں. پہلی بکنگ تے میرے بھائی نے کرا دی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.